Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class student. Today date is 13 January 2022 and I am teaching you chapter number 20. Name of the chapter, Birth of a Nation. Birth of a nation. So now student, let do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video student, I am explaining you about form of government in India. In this we have already discussed that there are three forms of government in India, that is one is in the center, another is in all the states, and local self government, that is in the villages, and we say it as a gram panchayat. And in different forms of this government, the method of how the method is that how the leaders are elected or how the leader are choose. So that is the method of voting method. ठीक है, सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज मेंशन any people whose any citizen of India whose age is 18 or above 18 can give the vote. So it is already mentioned in the constitution. So that I just discussed with you. In this different forms of a government, the method how the leaders are elected, that is by the voting method, and votes are given by the people living in that area. So central we have already discussed, and what are the second level and self local government, that is in the villages, in all the villages having their own gram panchayat, and the head of the gram panchayat is known as the sarpanch. After that we discuss the important function of a gram panchayat, how they work for the welfare of the people living in the villages. Okay, now after that the next thing which we will discuss, that is the next thing which I start explaining you in the previous video is about what is the role of a municipal committee and municipal corporation. So very quick little recapitulation I will give you, that in small towns and cities we have municipal committee, and in big metro cities we have a municipal corporation. Okay, so second point which I told you about this is that the method of the method how the members are elected, that is the same in both the municipal committee and municipal corporation, and the members from the whole city is divided into different wards, and from each wards the member is elected. Okay, so member is elected. So and these member, whether it is a municipal committee or whether it is a municipal corporation, these members are known as councillor. Many times this question asked in the examination, the member of municipal committee or the member of municipal corporation are known as, so the right answer is what? Councillors. Okay, the difference is that in municipal committee the head, okay, the head of the municipal committee is known as a chairman, and in municipal corporation the head of the municipal corporation is known as mayor. Now in today's video we will discuss what are the functions. Okay, now in today's video we will discuss what are the functions of the municipal committee and municipal corporation, how they work for the welfare of the people living in that area.
So one by one we will discuss the different functions of the municipal committee and municipal corporation. Provide clean drinking water for the people living in that area. This is also the function of the municipal committee and municipal corporation. As we know that in the cities area the water is supplied by the pipelines. ठीक है, जैसे आप कैंटोनमेंट में रहते हो 39 GTC में, तो यहाँ भी एक पंप हाउस है आपके कैंपस में, ठीक है। वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा, एक बड़ी सी टैंक है जिसमें वाटर स्टोर है, एंड फ्रॉम हियर द वाटर इज अ सप्लाई, एंड दिस सप्लाई वाटर इज यूज बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया, दैट इज कैंटोनमेंट एरिया 39 GTC। ओके, तो सिटीज एरिया में ऐसा ही होता है बेटा, वाटर पंप्स होते हैं, वहाँ से वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट इज आल्सो डन बाई this is also one of the most important function of the municipal committee, or you can say municipal corporation, because as we know that we required water, lot of water in many activities, in many day to day life activities we required lot of water। okay, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर 4-5 मेंबर की भी फैमिली है तो बेटा आपने घर में वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक रखा होगा, और आप देखना डेली आपके मम्मी पापा उस टैंक को फिलअप करते हैं, उसमें वाटर स्टोर करते हैं। इसका मतलब 4-5 मेंबर भी फैमिली में है तो भी मोर देन या लगभग हम लोग 500 लीटर वाटर डेली वेस्ट कर दे रहे हैं। इज इट क्लियर? सो अनदर इज द क्लीन सराउंडिंग्स, क्लीन सराउंडिंग, ठीक है। क्लीन सराउंडिंग इज आल्सो a very important function, because if the surroundings are clean then only the person living in that area are fit and healthy। as we know that all the time we are not in our house, ठीक है। जैसा कि हमें पता हर समय में हाउस में नहीं होते, many times we have to go out from our house to buy the things or for job purpose also, or even you also come out from your house every day for the study purpose also, you go to school, so that is the reason। आप देखते हो कि आपके मम्मी लोग आपके हाउस को बहुत क्लीन रखते होंगे, यू थ्रो गार्बेज इन ए प्रॉपर डस्टबिन एंड दैट डस्टबिन इज आल्सो कवर्ड, so that your house is free from the germs, because these germs are so small that we are unable to see them with our naked eyes। so and in the same manner आप जिस सराउंडिंग्स में रोज अप डाउन कर रहे हो वो सराउंडिंग्स भी क्लीन होनी चाहिए। हाउ द सराउंडिंग्स आर क्लीन, उसमें हमें ये देखना है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, जो कूड़ा है, जो रोज सबके घर से इतना कूड़ा निकलता है, ठीक है, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, उसको शहर से दूर ले जाके डंप किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्लास 4th में भी आपने कई बार होता है हम लोग जो कूड़ा निकलता है उसको जला देते हैं, बट इट इज आल्सो नॉट अ राइट मेथड, बिकॉज व्हेन वी बर्न द थिंग्स बड़ा बड़ा कूड़े का ढेर बहुत छोटा सा हो जाता है बर्न करने में, नो डाउट, बट ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है। तो उसको प्रॉपर डंप कराया जाता है आउटर एरिया में, आउटर एरिया फ्रॉम द सिटीज। तो क्लीन सराउंडिंग्स होनी चाहिए, और वहाँ उसमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं पाइपलाइन में लीकेज तो नहीं है। पाइपलाइन में लीकेज होगी तो सराउंडिंग्स में वाटर स्टेगनेंट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर होगा। स्टेगनेंट वाटर इज अ वेरी फेवरेबल ब्रीडिंग प्लेस फॉर द मॉस्किटोज। अब आप जिस एरिया में रह रहे हो अगर वहाँ बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज होंगे बेटा तो मलेरिया, डेंगू जैसी जो डिजीजेज हैं दे विल स्प्रेड इन दैट एरिया, सो दैट इज द रीजन आवर सराउंडिंग शुड बी क्लीन। ओके, फिर नेक्स्ट है रोड। okay, so to move from one place to another there should be a construction of a road। नए रोड हैं तो उनकी कंस्ट्रक्शन कराने का काम भी किसका, इन्हीं का काम है, म्युनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन का। और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स भी आप कह सकते हो, और रिपेयरमेंट ऑफ द ओल्ड रोड्स आल्सो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रिपेयरमेंट ऑफ द रोड ये भी ये करते हैं, ठीक है। तो रोड की फैसिलिटी हो गई। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। देखो ओल्ड टाइम से अगर हम लोग आज प्रेजेंट टाइम को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हमारी एक समझ लो बेसिक नीड बन गई है, बिकॉज मैक्सिमम थिंग्स विच आर इन आवर हाउस दैट आर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मीन्स दे आर रनिंग विद द हेल्प ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ लो बेटा ये बहुत सी आज के प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया, इतनी सुविधाएं हमारे घर में हैं,
और मैक्सिमम ये चीज़ें किस पे रन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो आज के प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक हमारी क्या बन गई है, बेसिक नीड बन गई है। इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गई है, हमारी बेसिक नीड बन गई है। तो गुड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना भी शहरों में और बिग सिटीज़ में, दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन। मैं दोनों वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि फंक्शन दोनों के सेम है भाई, वहाँ भी पीपल रहते हैं, यहाँ भी पीपल रह रहे हैं, ठीक है, दोनों के फंक्शन सेम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कंबाइंड दोनों के फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। म्युनिसिपल कमेटी टाउन्स और स्मॉल सिटीज में है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में है, दैट्स द डिफरेंस। सो प्रोवाइडिंग गुड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी एंड कॉर्पोरेशन। और नेक्स्ट है इशू ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया इशू ऑफ ए बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये दैट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, जब भी किसी बच्चे का, देखो कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम हमें उसका नाम चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इससे किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है इसका भी डाटा तैयार होता है। इज इट क्लियर? अगर कोई भी बच्चे का बर्थ होता है तो हम लोग जाके शहर एरिया में लोग और जो गांव के लोग हैं तो ये वार्ड्स पे जाके अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बनवाते हैं। ठीक है, और अगर किसी की डेथ भी हो जाती है तो इसका भी एक सर्टिफिकेट, जिस तरह बर्थ होने का भी एक सर्टिफिकेट बनता है बेटा, इसी तरह अगर कोई पर्सन डेथ हो जाता है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और ये काम किसका है? म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि एवरी ईयर हाउ मेनी न्यू बर्थ, हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्रीज, और डेथ रेट से पता चलता है कि कितनी बर्थ रेट से ये पता चलेगा कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और डेथ रेट से ये पता चल रहा है कि कितने नए बर्थ हुई और कितने लोगों की डेथ हो गई। तो इससे पॉपुलेशन का वो भी मेंटेन होता है डाटा। ठीक है, तो इशू ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। लाइब्रेरीज, तो पब्लिक के लिए लाइब्रेरीज भी होती हैं। ठीक है, जहाँ पे एज वी नो डैट लाइब्रेरी में तुम्हें ऑल टाइप्स की बुक्स, कंपटीशन बुक्स, नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल, एंड इवन यू गेट डिफरेंट न्यूज़पेपर। जैसे आप अपने घर में कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर लेते होंगे, लेकिन आप लाइब्रेरी में जाओ तो वहाँ सारे अलग अलग न्यूज़पेपर आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरीज भी होती हैं। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरीज भी होती हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही ये आप एक पार्ट समझ लो, फंक्शन को समझ लो। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस इज आल्सो इसको भी प्रोवाइड कराने का काम क्या है? म्युनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन का। आप जहाँ रहते हो वहाँ बस स्टैंड होना चाहिए प्रॉपर, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि बेटा आज विलेजेस में भी बहुत चेंजेस आ गई है, क्योंकि जितने ज़्यादा रोड होंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उतनी ज़्यादा प्रोवाइड होगी उस एरिया में। तो दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ द म्युनिसिपल कमेटी। ठीक है, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, क्लीन सराउंडिंग्स हो गया, रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इशू ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ओके, सो ये सारे के सारे किसके फंक्शन है? दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द, ये सारे के सारे फंक्शन आपके, और भी फंक्शन है, मैंने कुछ फंक्शन डिस्कस कर दिए बोर्ड पे। ये सारे के सारे फंक्शन किसके हैं? म्युनिसिपल कमेटी के। पब्लिक टॉयलेट्स भी, पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है, पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स भी होने चाहिए। तो दिस इज आल्सो द फंक्शन ऑफ ए म्युनिसिपल कमेटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सब इसी के फंक्शन में आता है। ठीक है, और फिर प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, प्लांटिंग ऑफ
न्यू ट्रीज, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज एज वी नो दैट in we are cutting lot of trees and due to this the rate of pollution is increasing day by day, so that is the reason planting of tree. this is also the आप लोग टाइम टू टाइम देखते होंगे कि स्कूल के इवन स्कूल के बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, पेड़ लगाए जाते हैं किस समय, रेनी सीजन के समय, जैसे वन महोत्सव का फेस्टिवल भी हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वन महोत्सव कब आता है, दिस फेस्टिवल कम्स इन द विच सीजन, दैट इज द मॉनसून सीजन भी बोल सकते हो और रेनी सीजन भी बोल सकते हो। सो वी प्लांट न्यू ट्रीज एट दिस टाइम। ऐसे तो हम लोग कभी भी लगाते हैं, लेकिन स्पेशली इस समय इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि अगर हम इसी तरह पेड़ों को कट करते रहे तो पेड़ों की वजह से ही हमारी लाइफ है, हम ऐसी गलती करके अपनी ही लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द फंक्शन जो कि मैंने आपके डिस्कस कर दिए, ठीक है। दैट इज द रीजन। एक चीज यहाँ पे और बता दें बेटा, हम लोग वाटर टैक्स भी देते हैं, वी आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आल्सो, हम लोग वाटर का बिल भी भरते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल भरते हैं। फिर हाउस टैक्स भी होता है, शहर के एरिया में अगर आपका हाउस है तो वहाँ हाउस टैक्स भी लगता है। फिर हम लोग मैनी टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो दैट इज द रीजन हमें टैक्सेस टाइम टू टाइम पे कर देने चाहिए, टाइमली पे कर देने चाहिए टैक्सेस, बिकॉज ये जो मनी कलेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ दिस टैक्सेस, इस टैक्सेस के पे करने से जो मनी कलेक्ट होती है बेटा, यही मनी आपके वेलफेयर में यूज की जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आएगा कहाँ से आएगा, तो जो हम लोग टैक्स बेटा, आप कोई भी सामान बाजार से लेते हो, कोई भी सामान हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हर चीज़ पे हमें टैक्स पे करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वाटर पे टैक्स पे करते हैं, हाउस का टैक्स होता है। इवन आप लोग अपने पापा लोग से डिस्कस करना, व्हेन दे बाई अ न्यू व्हीकल, कोई भी नई गाड़ी वाड़ी आप खरीदते हो तो उसका भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, क्योंकि रोड पे ना व्हीकल चलती है तो रोड कौन बनाएगा। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू पे आवर टैक्सेस ऑन टाइम, क्योंकि जो आपकी मनी कलेक्ट होती है बेटा, यही मनी आप ही के वेलफेयर के लिए यूज होती है। आ रही है बात समझ में, ये जो मनी कलेक्ट होती है बेटा, ये मनी आप ही के वेलफेयर के लिए यूज होती है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन वी हैव टू पे आवर टैक्स ऑन टाइम, ठीक है। तो ये सब भी डिस्कस कर लिया। देखो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे गवर्नमेंट्स क्या है, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, टैक्स की मनी से ही वो जो इतनी ज़्यादा मनी कलेक्ट होती है, उसी से हम लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा होगा जब हम एक शहर से दूसरे शहर या दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हमें टोल टैक्स भी देना पड़ता है अपनी व्हीकल का, होता है ना। तो यही सब जो पैसा कलेक्ट होता है, इसी पैसे को कलेक्ट करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इसी मनी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीज़न, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट पॉइंट इसमें दिया है, वी आल्सो हैव नेशनल सिंबल्स विच आर शेयर बाय द होल नेशन। अब यहाँ ये बात क्यों की नेशनल सिंबल की, शेयर बाय द होल नेशन। नेशनल सिंबल ये सब इसलिए बनाए गए ताकि देखो हमारी कंट्री जो है, the people belonging to different religions are living in this country, so that all the peoples are united together। इसलिए ऐसा हमारी कंट्री में नहीं होता है, सब कंट्री के अपने अपने नेशनल सिंबल्स ये सब होते हैं, जिससे कि लोग आपस में यूनाइटेड हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में एक दिन मैंने प्रीवियस वीडियो में एक दिन आपको बताया था कि भाई हिंदूज के अपने फेस्टिवल्स हैं, मुस्लिम के अपने फेस्टिवल हैं, क्रिश्चियंस के हैं, सिख लोग के अपने फेस्टिवल हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जिसको पूरी कंट्री एक संग यूनाइट होकर सेलिब्रेट करती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, सो एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इट एज ए रिपब्लिक डे। ऑन 15 अगस्त 1947 वी गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द British rule, so we celebrate it at the Independence Day. And as we know that at that time in a freedom struggle, lot of people have respect for Gandhi ji, and Gandhi ji is also known as the Bapu, okay, and that is the reason महात्मा गांधी की उपाधि भी उन्हें मिली थी। तो that is the reason 2 अक्टूबर also this day we celebrate as a
national festival. So these are the things which bind us together. ठीक है, जैसे नेशनल एंथम है. ठीक है, we will continue this in the next video. Thank you.